So is my screen share available, visible to all of you? So it's the first No, slide to go ahead with. Yes, yes, sir. no, So, sir. at first, I will be just introducing you, I Done. mean, our platform Klarnet, and after that, I will introduce our, coordinator moderator, Dr. Bhuban Nagpal, and after that, I will be introducing you, Mm-hmm. and after that, I will hand over the session over to Okay, done. So I, Bhuban, I sir. I will just stop the screen share now, and then you guys can go ahead. Okay, okay, no problem, sir. Yeah. Okay. Okay, so I'm starting the session. Greetings and a warm welcome to everyone. I am Dibita, the assigned moderator from DentalNet. It is my proud privilege to extend a heartfelt welcome to all the delegates joining us from across the country. We're indeed fortunate to have the valuable support of esteemed doctors, and I express my gratitude to each one of you for dedicating your time to be with us today. DentalNet is a dedicated all in one medical content platform designed exclusively for dental professionals. Our mission is to empower dentists, hygienists, dental specialists, and students with cutting edge evidence based knowledge to elevate patient care and foster ongoing professional growth. At DentalNet, we bring together a nationwide network of dental experts to share their knowledge, clinical experience, and practical wisdom. And the topic of today's session is pediatric patients to do or not to do. So, I would like to welcome our coordinator and moderator for today's session, Dr. Bhuvan Nagpal, sir. Dr. Bhuvan, sir, is an accomplished academician, clinician, and healthcare leader with an exceptional portfolio of qualification, including BDS, MDS, PGT, MSc, MBA, PGD, MLS, LLB, CLQMS, PhD, and FPFA, USA. His multidisciplinary expertise reflects his unwavering commitment to excellence in dentistry, healthcare management, clinical biochemistry, and medical education. He currently serves as the Joint Secretary of the Indian Dental Association, HISR branch, and is widely recognized as a senior oral pathologist and clinical biochemist. In addition, he is the founder president of POPMA, where he has played a pivotal role in promoting professional development and advancing healthcare initiatives. So, now I would like to welcome our keynote speaker for today's session, Professor Dr. Nikhil Marwa. Dr. Nikhil Sir is a highly respected pediatric dentist with an exceptional academic and professional career. He holds the degree of BDS, MDS, and PhD and currently serves as the Dean of Research at Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology, Jaipur. He is also the editor in chief of the International Journal of Clinical Pediatric Dentistry, where he has made significant contributions to advancing pediatric dental research and scholarly publications. In addition, he serves as the Assistant Secretary of the Indian Society of Periodontics and Preventive Dentistry, reflecting his commitment to the growth and development of pediatric dentistry in India. So, without any much further delay, I will just hand over the session over to Bhuban Nagpal sir, and you can start the session. Yes. Thank you, Miss Dibita. Uh, Good evening, one and all. On behalf of Indian Dental Association Hisar branch, I warmly welcome you all to the third webinar of our IDA Hisar webinar series. And I sincerely thank all our IDA members, office bearers, and participants for their continued encouragement and enthusiastic support, which has made this webinar series a success. It is my proud privilege to welcome our distinguished speaker, Professor Dr. Nikhil Marwa sir, an eminent pediatric dentist, academician, and researcher. We are grateful to him for accepting our invitation to share his expertise on pediatric patients to do or not to do. Thank you once again for joining us, and I wish everyone an excellent learning experience. Thank you, sir, and over to you. Hi, everybody, and a very good evening.
at the outset, what's first of all, let me thank the entire team कि आप लोग ये करवा रहे हो, and I am really thankful to you and the organizers, Bhuvan, especially for taking this entire thing, and of course to my friend Varun who always keeps on pushing me to do this for Hisari IDA. Or I really wanted to come there and we had planned something last time, but unfortunately वो हो नहीं पाया. तो आई थिंक बिफोर यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज सबको मेरी तरफ से कि मैं इस चीज़ को वहाँ आके पर्सनली आपको नहीं कर पा रहा हूँ. और दूसरी चीज़ ये कि वी शैल get it done very soon in the coming future. So the topic for today's presentation, as I thought it is most apt, is to do or not to do. And of course, as being a dentist, being a registered dentist, nobody can stop anybody from doing any case. But ultimately, it's a very critical kind of a situation. Whereas we have the options of doing, not doing, undoing, and doing some little bits only. क्योंकि इसमें अंडू का बटन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर पे हों और फटाफट से हमने कुछ किया और कंट्रोल Z एक दबा दिया तो वो अंडू हो जाएगा. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं हो पाता, क्योंकि it leaves a very very lasting impression on the child, on the parent, about you, about your dentistry, and about all the aspects of dentistry. So, before I start this, lecture, a small disclaimer that these are my thoughts only. I am not telling anybody कि तुम ये करो या तुम वो मत करो. But एक सिर्फ एक genuine suggestion एक मेरे end से कि हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी clinical practice और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा secure हो. आई एम श्योर जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, आप सब यू आर ग्रेट प्रैक्टिशनर्स एंड ग्रेट क्लिनिशियंस ऑन ओन एंड. बट फिर भी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बता देना चाहिए व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. सो स्मॉल डिस्क्लेमर बिफोर आई स्टार्ट विद. सो when the child comes to the pediatric clinic, we really don't know. आप सोचते हो कि बच्चा डरा हुआ है. बच्चा सोचता है कि मैं तो डरा हुआ हूँ. मेरे से आप अगर पूछोगे तो इफ यू आस्क मी, आई विल ऑलवेज से द चाइल्ड इज इक्वली अफ्रेड एंड द डेंटिस्ट इज ऑल्सो इक्वली अफ्रेड. द चाइल्ड इज अफ्रेड बिकॉज ही डजंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, कि वहाँ क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह का ट्रीटमेंट होगा, जगह कैसी होगी. एक अननोन जगह होती है. जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन अ डार्क रूम. आपको सडनली एक डार्क रूम में धक्का दे दिया जाए तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज एनीथिंग, एंड फिर उसे डर लगता है. सो दैट्स द फियर ऑफ अननोन वी आर टॉकिंग अबाउट. और जब हम डेंटिस्ट्री की बात करते हैं तो फियर ऑफ अननोन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमेशा हर एक को डर लगता है. एक बच्चे को बहुत डर होता है कि क्लिनिक में क्या होने वाला है, किस तरह का ट्रीटमेंट होगा, डॉक्टर मेरे साथ क्या करेगा, क्या नहीं करेगा. और कहीं ना कहीं पार्शियल कारण उसका ये भी है कि बच्चों के पेरेंट्स हमेशा उनको डरा के रखते हैं. तो एक तरह से फियर ऑफ डेंटिस्ट्री इंडिया में बहुत प्रिवेलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन इफ यू लुक एट द फ्लिप साइड, आई वुड से द डेंटिस्ट इज इक्वली अफ्रेड बिकॉज ही डजंट नो हाउ द चाइल्ड विल रिएक्ट इन द डेंटल क्लिनिक. तो उसके मन में क्या होता है कि यार मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा. अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, शोर मचाएगा, कूदेगा, मेरी कितनी आराम से काम करा पाएगा या क्या नहीं करा पाएगा. सो when we talk about fear, it's the same fear is there in the child and the same fear is there in the dentists. I am sure आप सब लोग जितने भी आज ये सुन रहे हैं और जितने लोगों ने भी एक डेंटिस्ट्री या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री को एक्सपीरियंस किया है, वो इस चीज़ से मानेंगे कि द फियर इज इक्वली इन बोथ द वेज. डेंटिस्ट में भी और बच्चे में भी इक्वल फेयर होती है बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सो what when it comes to adult dentistry, which most of you are practicing, it's a one to one relation wherein you directly tell the patient, you directly talk to him and he gives a reply back. But यहाँ पे स्पेशली पीडो प्रैक्टिस में इट्स नॉट अ वन वे रिलेशन, इट्स अ थ्री वे रिलेशन. क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप बच्चे से कुछ बोलने की कोशिश करोगे तो पेरेंट्स वुड बी इन बिटवीन एंड टेलिंग देयर ओन स्टफ. बहुत बार ऐसा होगा कि बच्चा कुछ बोलना चाहेगा लेकिन पेरेंट्स बीच में इंटरवीन कर रहे होंगे. तो बहुत बार जो हमें इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं वो पेरेंट्स के थ्रू ही जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ डायरेक्टली हमारे ट्रीटमेंट को इन्फ्लुएंस करती है. क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एंड द चाइल्ड लिसन्स टू इट इन अ सर्टेन वे, बट द पेरेंट विल ऑलवेज इंटरवीन. सो यू हैव टू डिसाइड वेरी केयरफुली हाउ मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट यू वांट. सो एज आई सेड,
In adult practice, it's more a linear relationship where you say the patient agrees or disagrees. But in this case, it's a three-way relation where the child may or may not agree, and again, the parent may or may not agree. So this is very important because you have to communicate three-way, and you have to make sure that all the three angles are covered in this, the child as well as the parent. So, you know, I know today's generation doesn't do this, but there are people still doing this in India. It's saying दूध के दांत हैं गिर जाएंगे. You don't have to worry about them. My earnest request, if you find anybody doing that, please try and counsel them that that's not the way to go forward. If it was so easy, probably pediatric dentistry wouldn't have been born only. क्योंकि आप सबको मालूम है किसी ना किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट होती है तभी अगली चीज़ बनती है. तो अगर ये प्रोफेशन बना है या ज़रूरत बनी है तो कहीं ना कहीं इसकी रिक्वायरमेंट जरूर होगी. तो ये कहना कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे, नए आ जाएंगे, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो काफ़ी सारे गांवों में अभी भी होती है. और अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें आई डोंट ब्लेम द पेशेंट्स, आई ब्लेम द डॉक्टर्स because it is told by the doctors to the patient. So ultimately, kahin na kahin, we are all at fault. We as dentists, maybe we as doctors, maybe we as pediatricians also are at fault in this. And I always have this slide and I always counsel everybody, कुछ करो या ना करो, लेकिन ये बोलना बंद कर दो कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे. और अगर नहीं भी बोल रहे हो, यू फाइंड समबडी एल्स डूइंग इट, काइंडली मेक श्योर कि वो भी इस चीज को अवॉइड करे. सो यू मे थिंक कि ठीक है, पीडो पेशेंट्स हैं, क्या जरूरत है ना हमारे क्लिनिक पे. वी डोंट रियली नीड देम. वी आर डूइंग गुड एडल्ट प्रैक्टिस. वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ इम्प्लांट्स केसेस, लॉट्स ऑफ मनी टू रोम अराउंड, and you have your topmost RCTs and your bridges and crowns and everything is perfect. So why do you need a pedo patients? लेकिन कभी इस बात को ध्यान से देखिए, ध्यान से सोचिए कि एक वो पेशेंट जिसके साथ आज आप छोटे उम्र से एसोसिएटेड हो, वो आपका एक लाइफ लॉन्ग पेशेंट है. मैं तो सिर्फ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री करता हूँ, अडल्ट्स को नहीं लगाता हूँ हाथ. मेरे क्लिनिक पे ऑप्शन भी नहीं है. बट वो पेशेंट भी जब मेरा 5 से लेके 15 साल तक मेरे पास आता है ना, तो मुझे उससे भी एक तरह से एक अटैचमेंट हो जाती है और एक लगता है कि हाँ, मैं कुछ जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ. So imagine that you see a patient from, very young stage to adulthood and his marriage and probably his kids. Great. Imagine that kind of a practice, that kind of a name which you're having. We always say na, कि, these are the treatments parents used to get it done. Yeah, this is the best place where food was there. So ऐसे ही, this is just like advertisement. ये आपकी advertisement है, आपका अच्छा काम, and it has to go through generations. So it's lifelong patience. Second, फैमिली कनेक्शन. अगर आपके पास बच्चा आ रहा है तो वो अकेले तो नहीं आएगा. डेफिनेटली उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड चिल्ड्रन आपके उसके साथ आएंगे. सो व्हाट विल हैपन नाउ दैट यू ट्रीट अ चाइल्ड वेल, द पेरेंट्स विल से, अरे यार, ये अगर बच्चों का इतना अच्छा इलाज कर देते हैं जो कि बात नहीं मानते, तो हमारा कितना अच्छा करेंगे. सो दैट्स अ वेरी बिग यूएसपी. हम अक्सर बच्चे क्लिनिक में आते हैं तो हम भगा देते हैं कि नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कल आना, परसों आना, कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. बट इफेक्टिवली आप देखो, यू आर लूजिंग आउट ऑन देम, यू आर लूजिंग आउट दैट एंटायर फैमिली. अगर आप एक बच्चे का ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं या अपने क्लिनिक पे उसको एसोसिएट करते हैं, तो पूरी की पूरी फैमिली आके आपको दिखाती है, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग टू हैपन टू अ डेंटिस्ट इफ यू सी जनरेशंस ऑफ पीपल ऑल टुगेदर. सो if you see pediatric patients, you are definitely going to be seeing their parents, their grandparents. So imagine the kind of dentistry you're doing. Not only, I'm not talking about goodwill here, but I'm also talking about financial benefit. So इमेजिन एक पूरी फैमिली आपको दिखा रही है, तो डेफिनेटली एक किसी ना किसी की तो कोई ना कोई टाइम पे नीड होंगी ही होंगी. तो वो नीड्स बरकरार रहेंगी. अब आप सोचो कितना फायदा होने वाला है आपको अगर आप एक बच्चे को देखना शुरू करते हो या एक चाइल्ड पेशेंट को देखना शुरू करते हो. अब सवाल यह है कि सोच तो लिया कि हमने देखना है, लेकिन देखना क्या है और कितना करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. सो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग बच्चे को मैनेज करते होंगे तो ऐसा ही करते होंगे. बट बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं होता. देर इज ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी. और बहुत बार ऐसा होता है
कि हमें बच्चे के साथ ऊंची आवाज में या एक स्ट्रॉन्ग आवाज में बात करनी पड़ती है, लेकिन इट्स नेवर टचिंग द चाइल्ड इनअप्रोप्रिएटली या फोर्सिबली, क्योंकि वो एक क्राइम है। अब इंडिया में भी इस तरह की चीज़ों को क्राइम माना जाता है। एक समय में हम बच्चे को पकड़ के कर लिया करते थे, ऐसे होता था कि जबरदस्ती पकड़ लो, जबरदस्ती कर लो, बट अब ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स भी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं और हम सबको इस चीज़ का खास ध्यान देना होता है कि बच्चे की सेफ्टी और आपकी सेफ्टी प्राइम कंसर्न है। So there are always two sides of the story. We have sides wherein बढ़िया अच्छे से काम हो रहा है और अच्छे से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब यही बच्चा जब डेंटल चेयर पे आता है ना, तो उसका रूप एकदम बदल जाता है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग साइड से काम करना पड़ता है, अलग अलग थॉट प्रोसेस से काम करना पड़ता है। बट देर आर ऑलवेज टू साइड इन द सेंस कि कभी वो बच्चा अच्छा है, कभी वो नेगेटिव है। तो ये एक पार्ट एंड पार्सल है ऑफ द गेम। तो when the child comes to you, ideally, what happens, how pediatric dentistry is different from your adult dentistry here. So what happens is, once your adult walks in, you are directly going to do the treatment for that person, and open your mouth, do the treatment, get over with it, and पैसे लिए और काम खत्म। बट अनफॉर्चुनेटली पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जो मिस करते हैं, एक तो हम फर्स्ट विजिट पे ही ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू एनी ट्रीटमेंट्स। हालांकि मैंने इसमें लिखा है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, स्मॉल स्मॉल रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि फर्स्ट विजिट पे आप वो करें। फर्स्ट विजिट पे हमें बच्चे को टाइम देना है, हमें बच्चे के पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम देना है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, और हमें बच्चे को अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम देना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। जब तक हम बच्चे को जानेंगे नहीं, तब तक ट्रीटमेंट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में तो नहीं हो सकता। एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, इट्स मैनेजिंग द चाइल्ड as well as managing the parent. So you are having a three-way connection here. So you don't have to just manage one case. You are supposed to manage the child and you are supposed to manage the parent also. सो फर्स्ट विजिट जो होती है, ये जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर हम इस विजिट पे अगर डायरेक्टली ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो हमारी ये विंडो मिस हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली दिस विंडो नेवर रीओपन्स। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू बिल्ड अ गुड रैपो विद द चाइल्ड। उसको मिलिए, उसको जानिए, उसके फेवरेट कार्टून्स, उसके फेवरेट शोज, उसका फेवरेट खाना, ये सब जानिए। अगर खेल सकते हैं तो प्रॉब्ली थोड़ा सा उसके साथ मे बी एक प्ले एरिया के अंदर आपके क्लिनिक में जो भी बना होगा उस पर खेलिए उसके साथ। let him feel that you are not a person who is associated with some kind of a pain or some kind of a trouble. Let him feel that नहीं, ये आदमी मेरा ट्रीटमेंट करेगा और मेरे भले के लिए करेगा और मेरे अच्छे के लिए करेगा। और वो तभी उसको फील होगा जब आप जेन्युइनली उसके साथ इंटरेक्ट करोगे और उसके बारे में सब कुछ जानोगे। सो फर्स्ट विजिट हैज टू बी टोटली टू डील with your rapport, establishing your rapport with that child, because this is, I believe, this is the most important aspect of pediatric dentistry. If you miss this first visit, one, you may never get that window. Two, child will have an uncooperative behavior at some time, and then you will not be able to manage because he will not trust you. Another very important thing is, we have to hear our patients. We have to be very patient with them. तो उस पेशेंस से जब आप काम करोगे ना, तो तभी काम हो पाएगा। और पेशेंस से आप काम कब करोगे? इमेजिन कि आपकी पेशेंट में, आपकी ऑपरेटरी में 10 पेशेंट बैठे हैं, 15 पेशेंट बैठे हैं और बीच में एक बच्चा भी है जिसका ऑफकोर्स आपने काम करना है। क्या आपको करना चाहिए उस टाइम? नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। आइडियली आपको पेशेंट को मिल के, उसको समझ के, 10-15 मिनट उससे बातचीत करके उनको एक ऐसे टाइम पे अपॉइंटमेंट दे, ऐसे टाइम आप अपॉइंटमेंट करें जिस टाइम पे आप मेंटली और फिजिकली फ्री हो। बिकॉज सी, इमेजिन यू आर हैविंग 10 cases back to back and a kid in between, whereas your 10 pieces of your implants or crowns or all those will give you X amount of money, but the kid may at that time will only give you X minus 10। और सबसे बड़ी बात, अगर बच्चा अंदर रोएगा तो it may scare the other patients also. This is a common fear which all of us have. All the dentists have this fear. So what I would suggest is that you take up the child that day. Do not send them away. Do not tell them दूध के दांत गिर जाएंगे। Please meet the child, greet the child, and then give them a suitable time within coming days जब आप mentally free हो। Probably Sundays, if you don't work on Sundays, maybe you can allot a certain time of Sundays to the child. Or maybe any day, if you start your practice, let's say around 11, then probably you can call the child at 9 in the morning. So what will happen is, you will have isolated 2 hours to give to that child.
always try and give morning appointments. The reason for this is, what happens is by the time it's evening, you are already cracked up on by your regular patients. So your patience is already on the wane. तो जब हमारी हिम्मत ही खत्म होने वाली है, तब हम ऐसा केस शुरू करें जो कि मुश्किल हो, जिसको कि जो कि हमारे फोर्टे से अलग है, वो हमेशा हमें मुश्किल देगा। दूसरा, शाम के टाइम अक्सर बच्चों की ट्यूशन खेलने का टाइम होता है, उनकी स्पोर्ट्स ट्यूशंस होती हैं या उनके एंटरटेनमेंट का टाइम होता है, लेट्स पुट इट दैट वे। सो जब आप उनको एंटरटेनमेंट के टाइम बुला रहे हो, तो आप दुश्मन तो नंबर वन पहले ही बन गए कि इस आदमी के लिए जाने के लिए मुझे अपनी गेम्स मिस करनी पड़ेंगी, मुझे अपना काम मिस करना पड़ेगा। तो आधा लेवल ऑफ अनकोऑपरेटिवनेस तो पहले ही लेके आते हैं, बचा कुछ आधा आप उनका ट्रीटमेंट में हो जाता है, तो वो कभी भी मैनेज नहीं हो पाते। ऑल्दो हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों का अपॉइंटमेंट शाम को रखो, यस, अगर आप एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, आपके पास एक प्ले एरिया है और बच्चा आके वहाँ खुश होगा, खेलेगा कूदेगा, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे क्लिनिक पे बच्चे आते हैं, वो कई कई बार कुछ नहीं होता तो भी आते हैं घर वालों को झूठ बोल के, क्योंकि उनको वहाँ खेलना होता है, उनको वहाँ टीवी देखना होता है, वो टीवी उनको वहाँ गेम्स खेलनी होती हैं, तो वो जबरदस्ती आते हैं कि हाँ, हम कुछ एंटरटेनिंग करने जा रहे हैं। लेकिन एक नॉर्मल डेंटल क्लिनिक की अगर बात करूं, जहाँ पे इस तरह के सेटअप्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो वहां पे एक बच्चे को आना अपनी खेल को तोड़ के एक पनिशमेंट होती है। तो ट्राई करें कि उससे, अगर इवन इफ इट्स द फर्स्ट अपॉइंटमेंट शाम के टाइम वो ले ली, उसके बाद लेकिन अगली बार ऐसे टाइम शेड्यूल करें जब मॉर्निंग हो, तो आप भी फ्रेश होंगे, बच्चा भी फ्रेश होगा। संडे मॉर्निंग करें, संडे मॉर्निंग को बच्चे की भी छुट्टी होगी, आपकी भी होगी। बट इनफैक्ट लेट मी टेल यू अ वेरी लिटिल सीक्रेट, देर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु कम टू मी एंड टेल मी कि अंकल स्कूल के टाइम की अपॉइंटमेंट देना ताकि स्कूल की छुट्टी मिल जाए। सो ऐसे में उनके लेवल ऑफ कोऑपरेशन एकदम बढ़ जाता है। अगर क्यों? क्योंकि उनका एक ऐसी एक्टिविटी जो वो नहीं करना चाहते थे, वो मिस कराई आपने। तो आपके पास तो उसको आधा घंटा ही बियर करना पड़ेगा, लेकिन उसको 6 घंटे की जो स्कूल के टाइम था उससे मस्ती मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपकी बच्चे के साथ रैपो अच्छी होगी, जब आप अच्छे से कर पा रहे हो और आप उसको बोल पाओगे कि क्या करना है और वो आपको बोल पाया क्या क्या करना है। So there are small little things which we develop over a period of time। ये कहीं लिखी नहीं हुई, ये कहीं बताई नहीं हुई, लेकिन ये एक सर्टन चीजें हैं जिससे करने से मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरी प्रैक्टिस इंक्रीज हुई। तो प्रॉब्ली आई एम श्योर कि आप सब लोग तो मेरे से भी बड़े प्रैक्टिशनर्स हो, और लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ऐड करने से हमारी प्रैक्टिस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये बात हुई कि हमें क्या करना है, कब करना है, पेशेंट आएगा तो हमें उससे कैसे डील करना है, ये सब बातें प्रिवेंटिव हैं, या ये सब बातें इवन प्रिवेंटिव से भी पहले हैं। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि अगर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में मैं डिवाइड करूं तीन चीज़ों को, प्री ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट एंड क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, तो मैं जो प्री ट्रीटमेंट है, जो बच्चे से मिलना, खेलना, कूदना, उसके बिहेवियर को समझना और अपनी बातें उसको समझाना, एक अच्छी रैपो डेवलप करना, मैं इसको मोर देन 60% ऑफ या 70% ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री कहूंगा। क्योंकि अगर आपने वो कर लिया ना, तो आगे आने वाले दोनों सक्सेसफुल हैं। और अगर वो नहीं किया तो फिर आगे दोनों वाले खानों में प्रॉब्लम हो जाती है। अब आई बात ट्रीटमेंट की, कि वेदर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इज गुड और क्यूरेटिव इज गुड। नाउ सम ऑफ यू मे थिंक कि ऑफ कोर्स वी नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, वी नो कि प्रिवेंशन से सब कुछ हो जाता है, लेकिन यही बात आपको पेरेंट को भी समझानी है। आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में भी समझा सकते हो। अब आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो समझते हैं क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ज्यादा कॉस्टली होता है, या क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में अपने को ज्यादा पैसे मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लेट मी टेल यू, curative treatment is going to give you X amount of money, but will have a lot of effort associated with it। क्यों? क्योंकि you are going to be associated with pain, problems, long term treatments, multiple sittings। बट जब हम प्रिवेंटिव केयर की बात करते हैं, प्रिवेंटिव केयर इज पेनलेस, प्रिवेंटिव केयर इज extremely comfortable for you and the child both। And let me tell you, parents these days are going to give you more amount of money so that caries doesn't happen, rather than you cure it after happens। So preventive care is the number one care which you should think of doing in a child, even a young growing adolescent child। The level of preventive care is a must। So अब
प्रिवेंशन में इतने सारे हमारी चीजें आज की डेट में डेवलप हो गई हैं, लेकिन देयर में बी न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर आर न्यू सॉल्यूशंस, देयर एवरीथिंग न्यू, बट लेट मी टेल यू, अभी भी जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रिवेंशन है ना, वो पिट एंड फिशर सीलेंट है. Now, you cannot beat this thing because pit and fisher is the single most effective solution for a child as well as for an adolescent. Or parents are very, very happy with it. Its performance is very, very good. कई बार हम 5 5 6 6 साल हमें सीलेंट्स रिप्लेस नहीं करने पड़ते दांतों के अंदर. सो दैट्स अ वेरी गुड टेक होम मैसेज, और वो स्पेशली उस पीरियड में जहाँ पे केरीज डेवलपमेंट होने की चांस मैक्सिमम है. सो पिट एंड फिशर सीलेंट्स इजी टू डू, कंफर्टेबल, कॉस्ट वाइज आपको रिटर्न ऑन मनी हमेशा ज़्यादा मिलती है बिकॉज यू कैन चार्ज इक्वलेंट टू अ कंपोजिट और प्रॉब्ली मोर. आई चार्ज मोर फॉर अ सीलेंट देन आई वुड चार्ज फॉर अ फिलिंग और अ restoration with composite. But according to you, again, even if you charge the same amount, the amount of the number of sealants which you're going to get in this particular syringe is going to be much more. The effort you have to put in is automatically also, is more so in a regular composite, whereas in sealant it's much more easier. But I believe that Pitt and Fisher sealants are the most, you know, true friend, एक डेंटिस्ट के बेस्ट फ्रेंड हैं एक्चुअली, जो कि जितनी आसानी से आप इनको यूज कर सकते हो, जितनी अच्छी क्लिनिकल परफॉर्मेंस इनकी है और जितनी अच्छी केरीज प्रिवेंशन परफॉर्मेंस है, वो और किसी की नहीं होती है. सो ऑफ कोर्स पिट एंड फिशर सीलेंट इज नंबर वन. ऑल ऑफ यू यू नो शुड हैव इट इन योर आर्सनल, एंड आई एम श्योर उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि करना कैसे होता है. इट्स प्रीटी सिंपल दैट वी क्लीन द कैविटी विद प्यूमिस, एंड ऐसे बहुत बार कहा जाता है कि बॉन्डिंग एजेंट लगा लेना चाहिए, बट इन माय एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट कि एचिंग ऑफ द कैविटी, ड्राइंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सीलेंट से बेस्ट कुछ नहीं है. बस इसमें मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इज आइसोलेशन, विच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. इफ यू हैव डन प्रॉपर आइसोलेशन, these सीलेंट्स आर द वंडरफुल फ्रेंड एंड वंडरफुल, they are here to stay. नेक्स्ट गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि डिबेटेबल है. वाई आई वुड से डिबेटेबल, क्योंकि बहुत लोग इसके प्रो हैं और बहुत लोग एंटी हैं, बट फ्लोराइड एप्लीकेशन से फर्क पड़ता है. लेट मी टेल यू, स्पेशली अगर पेशेंट आपके रेगुलर फॉलोअप में है, तो जो नए फ्लोराइड वार्निशेस के पैक हैं, पहले ज़माने में वी यूज टू हैव दोस थिक्सोट्रॉपिक सॉल्यूशंस जो हमें ट्रे के साथ लगाने पड़ते थे, बट दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल. दिस इज़ लाइक अ पेंट ऑन टेक्निक, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि एप्लीकेशन ईजी है, पेमेंट्स ईजी हैं, इट्स इकोनॉमिकल, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. एंड अगर हर 3 मंथ्स में पेशेंट आपके पास आ रहा है और फॉलोअप कर रहा है, आपने सीलेंट और फ्लोराइड लगा दी है, आपने उसकी डाइट काउंसलिंग कर दी कि क्या क्या खाना है या किस प्रकार खाना है, किस प्रकार नहीं खाना, तो आई एम श्योर यू आर सॉर्टेड. जैसे मैंने कहा था, preventive dentistry will pay you more with lot less pain and efforts as compared to your curative dentistry. So it's a very important aspect that we understand कि हमें प्रिवेंशन की तरफ बढ़ना है. इट इज ऑलवेज easier to do that. Another very important or newly developing thing is SDF. Now, although इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ये हैं कि टूथ स्टेन हो जाता है इससे, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आर्सनल भी है काम करने के लिए. क्योंकि अगर आपके पास बच्चा आया है, अनकोऑपरेटिव है, लेट्स से इवन हैंडीकैप्ड है या स्पेशल चाइल्ड है, किसी कारण से नहीं करा पा रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक छोटा बच्चा जो नहीं करा पा रहा कोई भी ट्रीटमेंट, उसमें आप उसको ऐसे ही खाली वापस भेज दो, उसकी बजाय तो ये कर दो. Definitely, I would prefer that you excavate the caries and restore the tooth. But sometimes it's not possible within our domain, even for us. And definitely, it may not be possible for sometimes for you also. For such cases, SDF and आजकल recent development आ गई है एक NSF करके. SDF का मेन ड्रॉबैक ये था कि उससे टूथ डिस्कलर्ड हो जाते थे बहुत सारे, लेकिन केरीज अगर इनिशियल केरीज है या इनामल केरीज है, वो वहां पे अरेस्ट हो जाती है. It doesn't go beyond that, so that's a very positive aspect of it. But nowadays you also have something which is like NSF also is commercially available, और इसमें क्या है, कुछ इन्होंने पोटेशियम आयोडाइड वगैरह ऐड कर दिया है जिससे कि स्टेनिंग कम हो जाती है. बट इट्स अगेन अ वेरी वेरी पावरफुल टूल. ओनली थिंग यू हैव टू बी केयरफुल इज कि एप्लीकेशन के टाइम आपको बहुत ध्यान से और प्यार से करना पड़ता है कि कहीं भी ओरल टिश्यूज में, कहीं भी कपड़ों में, किसी भी और चीज़ में ना लगे, अदरवाइज वो सब ब्राउन स्टेन हो जाते हैं. और इट टेक्स नियर अबाउट 4 to 5 months
कि वो स्टेन उस पर्टिकुलर टिश्यू से या गम से जाए, सो टाइम ज़्यादा लग जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि या तो प्रॉपर आइसोलेट करके करें, और अगर बच्चा आइसोलेट नहीं करवा रहा है, यू हैव टू मेक श्योर कि बाकी सब सरफेस पे हम वैसलीन अच्छे से अप्लाई कर दें। अगर हम वैसलीन अच्छे से अप्लाई कर देंगे तो किसी भी सरफेस पे वो ज़्यादा देर अटैच नहीं हो पाएगा, तो इट विल हेल्प अस। क्योंकि ये प्रोटोकॉल हम वैसे ही अनकोऑपरेटिव बच्चों में करते हैं। अब मैं कहूँ अनकोऑपरेटिव बच्चों में आप रबर डैम लगा के कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। सो अनकोऑपरेटिव बच्चा जहाँ पे है, जहाँ आपको नहीं कराने दे रहा वो रिस्टोर किसी भी तरीके से, वहाँ आप एसडीएफ यूज कर सकते हैं, अगर कैविटी डीप नहीं है तो। और make sure that you apply Vaseline, plenty of Vaseline on all the surrounding areas, as well as those teeth which you don't want to use, put SDF on. Begin by cleaning the affected tooth. Isolate the area and gently dry the surrounding surface. Apply a protective layer of petroleum jelly to the lips and gingiva. Using a microbrush, carefully apply ESDF onto the affected site. For interproximal areas, apply ESDF on dental floss and pass it through the contact point. Allow the material to remain for 1 to 3 minutes. Finally, remove any excess ESDF using a cotton swab. एक तरीका इसको फास्ट सेट करने का ये भी होता है कि जिस टाइम आपने एसडीएफ अप्लाई किया, उसके तुरंत बाद आप इसको लाइट क्योर कर दें। तो अगर लाइट क्योर कर देते हैं तो उससे इट सेट्स मच मोर फास्टर, सो यू डोंट हैव टू वेट 1 to 3 minutes, क्योंकि अक्सर ऐसे बच्चे अनकोऑपरेटिव होते हैं एंड दे वुड नॉट स्टे स्टडी फॉर 1 to 3 minutes। सो इफ यू यूज अ लाइट क्योर, इट विल hasten the setting process of SDF. इतने सारे नाम है जब तुम ये कहते हो, अच्छे लगते हो। ये एक मुझे ऐसे ही फनी वीडियो बीच में दिखा, तो मैंने कहा इसको डालता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं रेस्टोरेटिव केयर की, फिर भी हम पेशेंट को बोलते हैं मसाला भरना पड़ेगा दांत में कीड़ा लग गया है। तो हम बहुत अननोइंगली एक रॉ टर्म्स में पेशेंट को बोल देते हैं, लेकिन उससे एक पेशेंट के ऊपर बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट जाता है। कि एक तो वो सोचता है कोई कीड़ा है जिसको निकाला गया है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो रोड साइड वाले होते हैं वो कीड़े निकाल के दिखा रहे होते हैं कि देखो तुम्हारे दांतों में से कीड़ा निकला। तो वो उनके यूज में आ जाता है। और जब मसाला भरने की बात होती है, आई एम श्योर आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ सीमेंट को भरा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले तो एक ऐसा वीडियो भी था जहाँ उसने दांतों को पेंट कर दिया था, क्योंकि उसके पास क्लीन कराने का साधन नहीं था। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि जो भी हम टर्म्स यूज करें, जो भी हम बोलें, वो कम वो कम से कम ऐसे हों जो वेल एस्टेब्लिश्ड हों, और पेशेंट अगर कल को कम्युनिकेट करे तो उनमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो अनदर थिंग, अब जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मेरे जितने बीडीएस वाले दोस्त मेरे से पूछते हैं ना, तो वो एंटीरियर केरीज को लेके होता है, क्योंकि पेशेंट भी उसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड होता है, और आप लोग भी सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड होते हो कि करना क्या है। मुझे याद नहीं कि कितने लोग आप में से ऐसे हो गए जो आए थे, जो मैंने एक बार कुछ हो गया इस बात को कुछ साल की वर्कशॉप एक आईडिया की हमने हिसार में की थी, वहाँ मैंने स्ट्रिप क्राउन की डेमो दी थी। आई रियली वांटेड टू कम दिस टाइम कि मैं आपको जो नए क्राउन्स हैं उनकी डेमो दे सकूं, क्योंकि वर्ल्ड बदल गया है पूरा का पूरा तब से। सो मोस्ट ऑफ यू वुड थिंक कि हम अगर एंटीरियर क्राउन्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, स्ट्रिप क्राउन्स और जरकोनिया क्राउन्स। सो ऑफ कोर्स हमें मालूम है कि स्ट्रिप क्राउन कंपोजिट बेस्ड होते हैं। सो व्हाट वी नॉर्मली डू इज एक्सकेवेट द caries, पुट composite in them and put them, pretty simple. And zirconia of course involves a lot more cutting. बट लेट मी टेल यू, इन दोनों क्राउन्स की बजाय अब एक नया क्राउन मार्केट में अवेलेबल है जिसे कहते हैं बायोफ्लेक्स क्राउन्स। सो द एडवांटेज ऑफ दिस बायोफ्लेक्स क्राउन्स इज कि ऑल्दो यस अपीयरेंस यू में से कि इट्स नॉट एज गुड एज जर्कोनिया, लेकिन फिर भी रीजनेबल है बच्चों के हिसाब से। थोड़े दिन में कलर मर्जिंग भी हो जाती है, लेकिन डिसेंट है। एडवांटेज क्या है? अभी एडवांटेज क्या है, आपने सिर्फ केरीज एक्सकेवेट करनी है और इस क्राउन को डायरेक्टली लगा देना है, कुछ भी नहीं करना। मतलब ना कोई कटिंग है, और प्री साइजेस आते हैं 1 2 3 4 5 साइज में, 4 साइज में आता है। उसको आप अपने साइज सिलेक्ट करें अपने हिसाब से, आपके क्राउन के हिसाब से, और उसको फिट कर दें। ना क्राउन की आपको कटिंग करनी पड़ेगी, ना टूथ रिडक्शन में कोई ज़्यादा करना है। तो एक ये बहुत ही नया चीज़ आया है। ऑफ कोर्स पोस्टीरियर में भी सेम चीज़ है, लेकिन वो अलग है। हम पोस्टीरियर क्राउन आज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एंटीरियर मुझे लगता है कि एज अ जनरल डेंटिस्ट यू हैव
you experience these cases more of anterior crowns or anterior caries in pediatric patients. So it will be much more easier for you to access. So पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि स्ट्रिप क्राउन्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कलर शेड आता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन उनमें स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती, क्योंकि बच्चा इतनी देर कोऑपरेट नहीं करता कि हम प्रॉपर आइसोलेशन मेंटेन कर पाएं और उसको पूरे को एग्जीक्यूट कर पाएं। जरकोनिया क्राउन्स बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें जो अमाउंट ऑफ कटिंग होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, और वो सबसे बड़ी बात सबजिंजाइवल भी लेनी पड़ती है, तो बच्चा उसके लिए कोऑपरेट नहीं करता। और दूसरी बात, जरकोनिया क्राउन्स आप वाइटल टीथ में नहीं दे सकते हो, so that is a very big risk there, स्पेशली पीडियाट्रिक जरकोनिया क्राउन्स की जब मैं बात करूं, तो इसीलिए दोनों क्राउन्स को बीच में कंबाइन करने के हिसाब से बायोफ्लेक्स क्राउन्स जो आज की डेट में हैं वो सबसे अच्छे हैं। आप में से अगर कोई जाएगा गूगल पे, आप सर्च करें और यूट्यूब वीडियोस देखें, बहुत सारे वीडियोस आपको बायोफ्लेक्स क्राउन के मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। वो तो वीडियो में तो फिर भी आपको वो दिखाते हैं कि हमने क्राउन प्रेप हल्का सा किया और फिर उसको क्राउन लगा दिया जीआईसी सीमेंट करके। इन एक्चुअलिटी इतना भी नहीं करना पड़ता। ऑल यू टू डू इज एक्सकेवेट द केरीज, ट्राई योर क्राउन। अगर आपके क्राउन बराबर फिट आ रहा है, ट्राई आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। और अगर करना भी पड़े तो ये क्राउन को काट सकते हैं, इसको आप रेगुलर बर्ड से, इसको स्टोन बर्ड से, बहुत सॉफ्ट क्राउन्स हैं, दीज आर लाइक फ्लेक्सिबल क्राउन्स, सो यू कैन एक्चुअली कट देम। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important arsenal which has been developed recently for curing or for treatment of the anterior teeth. And this is a very very innovative thing and a very very new thing. It's by Indian company, किड्जी डेंटल इंडियन कंपनी है। हमारा एक दोस्त है जिसने इसको डिस्कवर करके चलाया है, एंड इस टाइम पे मार्केट में सबसे बड़ी है। और इनफैक्ट देर आर लॉट्स ऑफ फॉरेन ब्रांड्स विच आर एसोसिएटेड एंड विच वांट टू बाय दिस नाउ फ्रॉम हिम। ऑल ओवर वर्ल्ड वो सप्लाई करता है। तो अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया तो बायोफ्लेक्स क्राउन ट्राई करें। इट कॉस्ट अराउंड आई थिंक 1200 odd rupees, but it'll save you a lot of trouble with respect to your anterior teeth. And the biggest thing, it doesn't come off that easily. So जो स्ट्रिप क्राउन्स के बाद अक्सर हमें प्रॉब्लम होती थी कि पेशेंट्स यूज टू रिवर्ट बैक टू अस कि टूट गया, साइड टूट गई, चिप ऑफ हो गया, वो चीज़ खत्म हो जाती है। So focusing on, not focusing on any specific thing right now, but I want to, आज की प्रेजेंटेशन जैसे टाइटल था, इट वाज नॉट अबाउट टीचिंग यू एनीथिंग और नॉट अबाउट टेलिंग यू एनीथिंग, इट वाज जस्ट अबाउट टेलिंग यू हाउ वी कैन मॉडिफाई आवर प्रैक्टिस इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करते हैं तो उसके अंदर कैसे हम चेंज कर सकते हैं। सो what you can do, of course, you have to do counseling, your preventive care, SDF, रेस्टोरेटिव केयर आप डेफिनेटली करें, मतलब आप सब ट्रीटमेंट करें, मैं तो मना ही नहीं करता आप सब करें, लेकिन फिर भी हमें हमेशा मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे लेट मी पुट इट इन अ वेरी बेसिक एग्जांपल। most of us would be married, and of course those who are not yet will be doing so in the near future. So uh, as married individuals, men or women, we know that what are, where we have to say yes and where we have to say no for the benefit of the household, what do you say, shanti. तो हमें पता है हमें किस चीज़ के लिए हाँ करनी है और किस चीज़ के लिए ना करनी है, और कहाँ पे हमें करना है और कहाँ पे हमें अपना हाथ रोक लेना है कि नहीं ये नहीं करना है। ठीक है, तो उसी प्रकार कर हम सब कुछ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना हाथ रोकना पड़ता है उस शांति बनाए रखने के लिए। उसी प्रकार मैं कहता हूं कि डेंटिस्ट्री में हम सब कुछ कर सकते हैं, वी आर रजिस्टर्ड डेंटिस्ट, वी कैन डू एवरीथिंग, वी शुड डू एवरीथिंग, बट कभी कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में कुछ चीजें खराब भी हो जाती हैं, और खराब होने के बाद अनफॉर्चुनेटली कोई उनको अंडू का स्विच नहीं होता। तो वो चीजें खराब ना हो, इसलिए हमें पहले ही सोच लेना चाहिए कि यहाँ तक तो हम करेंगे, और यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे। आप सभी के जहाँ जहाँ आप हैं, आई एम श्योर लॉट्स ऑफ pediatric डेंटिस्ट वुड बी प्रैक्टिसिंग, एंड सो मेरा सजेशन है कि ठीक है, डेफिनेटली देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू कैन डू, बट सम थिंग्स लाइक स्पेस मेंटेनर्स, लाइक क्राउन्स, लाइक रूट कैनाल्स। अब आप अडल्ट में रूट कैनाल करते हैं, दे आर वेरी मच डिफरेंट टू pediatric रूट कैनाल्स, दे आर नॉट द सेम। सो ये सोचना कि हमने अडल्ट में कर लिया तो बच्चे में क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तरीका करने का अलग है, फाइल्स अलग होती हैं, मटेरियल्स अलग होते हैं, और सबसे बड़ी बात, उनको करने का तरीका अलग होता है। देर आर डिफरेंट मेथडोलॉजीज टू डू। यू मे एंड अप परफोरेटिंग, आई एम नॉट सेइंग यू विल, यू मे।
सो सिमिलरली क्राउन्स आप कर सकते हैं, आप लोग रेगुलर क्राउन करते हैं, स्टेनलेस स्टील भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये है कि कुछ चीज़ें हमें अपनी प्रैक्टिस में बांधनी चाहिए जो हम करें, और कुछ प्रैक्टिस में ऐसी होनी चाहिए जो स्पेशलिस्ट बुलाए। स्पेशलिस्ट भी आपके लिए ही करेगा, कुछ पार्ट ले जाएगा, कुछ पार्ट आपको दे जाएगा। प्रोबेबली यू मे इवन चार्ज मोर इफ यू आर कॉलिंग अ स्पेशलिस्ट। सो इफेक्टिवली इट इज अ विन विन फॉर एवरीबडी। सो यू नो अनकोऑपरेटिव पेशेंट हो, पल्प थेरेपीज हो, स्पेस मेंटेनर्स हो, हैबिट करेक्शन हो, आई सजेस्ट दैट यू शुड कॉल अ स्पेशलिस्ट फॉर दिस। द रीजन बीइंग इज बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना बच्चे पे अटेम्प्ट कर लेते हैं ट्रीटमेंट, और उसके बाद जब बच्चा बिखर जाता है, जब ट्रीटमेंट खराब हो जाता है या वो अनकोऑपरेटिव होता है, तब हम स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं कि करना है यार, जरा खराब हो गया, या तुम कर लो अब इसको, है ना, हो नहीं रहा है हमसे। तो दैट्स नॉट द करेक्ट अप्रोच। और ये इस कारण से भी होता है, क्यों? क्योंकि हमने पहले दिन ही अगर बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो हम यहीं पहुंचेंगे। सो द होल आइडिया इज दैट यू डोंट स्टार्ट द ट्रीटमेंट फर्स्ट। द फर्स्ट विजिट इज जस्ट एक्सप्लोरेटरी टू नो अबाउट द चाइल्ड। अगर आप पहले दिन बच्चे का सिर्फ असेसमेंट करोगे, उससे बातचीत करोगे ना, इतने में ही आप समझ आ जाएगा कि ये बच्चा कोऑपरेटिव होने वाला है कि अनकोऑपरेटिव होने वाला है। अगर आपको लगे कोऑपरेटिव है तो डेफिनेटली जो जो ट्रीटमेंट्स हम सोचते हैं हमें करना चाहिए वो करें। और आपको लगता है कि नहीं, रिस्क है, चू चू कर सकता है, तो बेटर है उसी टाइम स्पेशलिस्ट को बुलाएं। ऐसा नहीं कि केस खराब होने के बाद बुलाएं, पहले ही बुलाएं। स्पेशलिस्ट आर देयर, वी अल्टीमेटली वी आर ऑल वन फ्रेटर्निटी, हम सब इकट्ठे हैं। सो वी हैव टू एज आई टोल्ड, शांति बनाए रखने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं और कुछ नहीं करने पड़ते हैं, बट बाउंड्री लाइन इज इंडिविजुअल टू डिसाइड। आई एम नो बडी टू टेल यू कि आप ये करो और वो ना करो, बट ऑल आई एम हेयर टू टेल यू इज कि एंड बेनिफिट जो है वो आपका भी होना चाहिए, और पेशेंट गोज होम हैप्पी। दैट्स द एंड पॉइंट वी वांट, बिकॉज वी डोंट वांट सैड पेशेंट्स, वी डोंट वांट पेशेंट्स हु गिव अस अ बैड नेम इन मीडिया और टेल अस अबाउट एक्स वाई जेड इन मीडिया। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दोस थिंग्स। सो primary teeth matter. As a first, you should think, all of you should, I know you all already think that way, तभी आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री कुछ है। दूसरा, बच्चों को छोटे एडल्ट्स की तरह मत माने। बच्चे बच्चे होते हैं, और बच्चों का सेटअप पूरा अलग होता है, उनका दिमाग, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी साइकोलॉजी, उनका ट्रीटमेंट, उनके दांत सब अलग होता है। तो इसलिए उनको अलग सोचें। प्रिवेंशन इज ऑफ कोर्स बेटर देन क्योर। और एक पॉजिटिव फर्स्ट डेंटल विजिट जो होती है, वो जो फर्स्ट इंटरेक्शन, जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट इंटरेक्शन बच्चे के साथ आपकी होती है, वो बच्चे का वो लाइफ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन होता है। अगर आप में से कभी भी किसी को भी बचपन में ट्रीटमेंट में पकड़ के किया गया हो, जबरदस्ती किया हो, आई एम श्योर यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ प्लेजेंट मेमोरीज। और सबसे बड़ी बात, आप as a general dentist, yeah, as a specialist, or anybody who's practicing general dentistry is the first line of defense, because patient मेरे पास तो बहुत बाद में आएगा, सबसे पहले आपके पास जाएगा, क्योंकि आपको वो शुरू से दिखा रहा है। तो इसलिए think of us as partners in restoring the teeth or giving the benefit to the child, and we are not your competitors। आपकी डोमेन अलग है, हमारी डोमेन अलग है, yet we can combine। और उससे दो बेनिफिट होने वाले हैं। एक बेनिफिट वो होगा कि बच्चा खुश रहेगा, सुखी रहेगा, अच्छा जाएगा। और दूसरा कि आपकी और आपके पीडियाट्रिक डेंटिस्ट पार्टनर की ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। सो एंड ऑफ इट, आई जस्ट वांट टू से दैट just let's say that you guys are doing great। जस्ट हम हमें भी अपनी प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और ग्रेटर हो जाएगी। और जैसे मैंने बोला कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी बाउंड्री क्या है, हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना, कहाँ पे हमें एक स्पेशलिस्ट को इनवाइट करना है और कहाँ पे हमें खुद करना है। एंड एज आई सेड कि आप लोग फर्स्ट लाइन हो, तो योर सपोर्ट फॉर एवरीथिंग एंड मेकिंग अ पॉजिटिव फ्यूचर दैट चाइल्ड इज इमेंस। सो यू नो मेक श्योर दैट यू हैव अ टीम एफर्ट, बिकॉज अल्टीमेटली टीम जीतती है, कभी इंडिविजुअल नहीं जीतेगा। तो वो टीम एफर्ट में, उस टीम में एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को भी, जैसे आपने ओरल सर्जन को, ऑर्थोडोंटिस्ट को रखा हुआ है, एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को भी इन्वॉल्व करें, ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस ग्रो करे, ओवरऑल ग्रो करेगी। और एक रूल जनरल ले लें कि जब बच्चा पहले आएगा तो उसको हमेशा उसको खिलाएं, उसको ट्रीटमेंट की तरफ मत बढ़ें, उसको जानें, पहले उसको समझें। अगर आप उसको समझ लोगे ना तो आधी बैटल जीत लोगे। और दैट्स प्रिटी मच अबाउट इट। बट हमेशा याद रखें, मिल्क टीथ, जो दूध के दांत हैं, गिरेंगे नहीं, गिर जाएंगे लेकिन जरूरी हैं संभालने। वी कैन नॉट ऑलवेज से कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक मैसेज अगर हम पूरी दुनिया में सिर्फ ये मैसेज फैला सके ना कि दूध के दांत भी जरूरी होते हैं, उतने ही जरूरी जितने तुम्हारे दूसरे दांत होते हैं, तो आई थिंक यू गाइज आर द नंबर वन विक्टोरियस पीपल। क्योंकि अगर वो अच्छा पेशेंट बचपन से होगा, तभी तो अडल्ट पेशेंट बन के आप लोगों के पास जाएगा और अच्छा पेशेंट बनेगा। सो एक पॉजिटिव डेंटल हेल्थ लेके आएगा। और मैंने जैसे बताया, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। So thanks again, all of you, for listening to me for this presentation. I am not sure कि कितने लोग मेरे पे गुस्सा हो रहे होंगे और कितने लोग ऐसे कह रहे होंगे, अरे आधे लोग तो वो होंगे जो कह रहे होंगे कि क्या बोल दिया क्यों बोला। बट मेरी प्रेजेंटेशन मैं बहुत मन से करता हूँ, और जो मेरे मन में आता है, जो सच है, जो मुझे सच लगता है, मैं वो बोलता हूँ। अगेन, जैसे मैंने डिस्क्लेमर दिया था, ये मेरे मन की फीलिंग्स हैं। दे मे बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू ऑल थिंक, बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय प्रैक्टिस ऑफ pediatric डेंटिस्ट्री फॉर लास्ट 25 years। तो मेरे को 25 साल हो गए एक्सक्लूसिव पीडो करते हुए। यही मैंने सीखा है कि कैसे उसको मैनेज करना है, और आई थिंक दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। अगेन, टीम एफर्ट विंस। मेक श्योर कि आपकी क्लिनिक की टीम में एक पीडियोडोंटिस्ट, पेडियाट्रिक डेंटिस्ट का भी नाम लिखाओ कि भाई हमारे यहाँ ये स्पेशलिस्ट आते हैं। आई थिंक दैट विल बी द विक्ट्री फॉर एवरीबडी ऑल अराउंड। थैंक यू वंस अगेन। Thank you, sir. Thank you so much. Wonderful lecture, sir. I really loved your lecture. And before going further, so let us take some questions from the audience, Pan Sure. India. Um, One question is by Dr. Riddhi Shah. She is MDS resident Mhm. from Ahmedabad. What clinical factors help determine whether a primary tooth should be restored, monitored, or extracted? Come again, what So, factors? what clinical factors help Mhm. determine whether a primary tooth should be restored, monitored, or extracted? Every primary tooth, or for that matter, every tooth has to be monitored. We cannot come to the diagnosis of extraction on the first visit. Even sometimes when the patient comes with a big swelling, sometimes come unless until the tooth is, grade 2, grade 3 mobile, we can save the tooth. There are a lot of treatment now, like revascularization, regeneration kind of a treatment, wherein we put antibiotic paste and even wait for hopeless cases. So extraction is a no-no, and it is a last kind of a resort. I would not advise it in the beginning at any stage. So what governs it is the amount of caries which is involved. So agar simple, if it's initial caries, you restore it. If it's deep caries, pulp therapy. If it's beyond repair and it's like a grade 2 kind of a mobile, I would go for an extraction. But in recent past, there are cases wherein you have a sinus or a swelling, wherein earlier we used to extract such cases. But nowadays, with triple antibiotic paste therapy, you can make these, particular teeth last at least 6 months to 1 year, which is a win-win in a pediatric scenario. Right, sir. Anybody wants to ask question directly, they can ask from our audience, Hello, sir. specifically the members. Dr. Sachin this side. Hi, Sachin, how are you? सर ऑल फाइन। सर मुझे एक क्वेरी ये था कि पोस्टीरियर्स में हम अभी भी स्टेनलेस स्टील क्राउन्स को ही Gold कंसिडर standard. करें? Gold standard. ओके सो देखो, पोस्टीरियरली there are a lot of options, like you have a, जैसे मैंने बायोफ्लेक्स एंटीरियर में बताया, तो हम्म सिमिलर बायोफ्लेक्स इज ऑल्सो देयर फॉर पोस्टीरियर। हम्म एडवांटेज ऑफ द बायोफ्लेक्स इन पोस्टीरियर ऑल्सो द सेम, कि आप कट भी कर सकते हो, उसको अडेप्ट भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो लॉन्ग टर्म स्टडीज हैं वो यही कहती हैं कि एंटीरियर में तो उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, हम्म पोस्टीरियर में इतना नहीं, क्योंकि निकलने की संभावना हो जाती है। क्योंकि देखो, हम्म कोई भी क्राउन जो आप एस्थेटिक लगाओगे, वो पैसिव फिट होता है। सो हम्म पैसिव फिट क्राउन का मतलब यह है कि उसकी रिटेंशन सिर्फ आपके सीमेंट पे बेस्ड है, चाहे वो हम्म जर्कोनिया हो, चाहे वो बायोफ्लेक्स हो। लेकिन स्टेनलेस स्टील इज द ओनली क्राउन विच इज एक्टिव फिट। सो इवन हम्म यूजुअली दे से दैट अ स्टेनलेस स्टील क्राउन शुड बी सो गुड दैट उसके लिए सीमेंटेशन की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम्म सो वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। बट देन अगेन, इट्स हम्म नॉट द स्टेनलेस स्टील क्राउन विच यू गेट मेड इन योर लैब। इट्स द स्टेनलेस स्टील क्राउन, प्री फॉर्म्ड स्टेनलेस स्टील क्राउन, जो कि हम यस। मैनिपुलेट करके टूथ के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। और बट सर दैट बहुत सारी दैट इज द ऐसी गोल्ड स्टैंडर्ड। कंपनीज, बहुत सारी अभी कंपनीज आ गई हैं जो तो मतलब आप क्या, मतलब हम पहले तो 3M यूज किया करते थे, अभी मतलब अभी कुछ, मतलब आप कोई ऐसा रिकमेंड करते हैं कि दिस इज देखो, गुड विद आई योर आई थिंक एक्सपीरियंस? रेनबो
रेनबो यूज करो। मुझे पर्सनली मैं रेनबो यूज कर रहा हूँ। मैं भी पहले 3M करता था, फिर मैंने ह्यू भी किए। और हम्म बट ऑफ लेट मैंने पिछले जब से रेनबो आया मैंने रेनबो ही किए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उनकी शेप नियरेस्ट है टू इंडियन सिनेरियो। हम्म उनके अंदर कुछ रिटेंटिव सर्फेसेस थोड़े अब्रेजन हैं, ताकि वो हमारे सीमेंट ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाए, और कटिंग वगैरह उनकी बहुत आसान है, मैनिपुलेशन बहुत हम्म आसान है। हम्म। एंड कॉस्ट तो इज ऑल्सो रेनबो के क्वाइट साथ कम। जाया जा सकता है, रेनबो मतलब के साथ। एनी एनी डे, मतलब हम्म ब्लाइंडली आज की डेट में तो मैं कह सकता हूँ कि रेनबो, क्योंकि अगेन वही बात है, इट इज बीन डेवलप्ड बाय अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। हम्म। तो ऐसी चीजें जब हमारे खुद ही लोग डेवलप कर रहे हैं तो उनको पता है क्या प्लस और माइनस होता है, तो वो आपको बेटर चीज डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है सर। सर साइड बाय साइड सर, डॉक्टर तरुण कालरा ने पूछा है कंपैरिजन ऑफ कॉम्पोनीर विद फ्लेक्स क्राउन सर। देखो बायोफ्लेक्स क्राउन सर। सर सर डिफरेंस बिटवीन बायोफ्लेक्स क्राउन एंड कंपोनियर। कंपोनियर्स आर विनियर सर, रेडीमेड विनियर हाँ सर। सर, बायोफ्लेक्स क्राउन बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ये आप कंपोनेंट्स जो हैं हम्म आपके फ्लेक्सिबल नहीं होते, और ये एंटीरियर में आप सिर्फ इट इज लाइक अ सरफेस, बट बायोफ्लेक्स इज लाइक अ एंटायर क्राउन। और ओके इसकी ओके। फ्लेक्सिबल होती है, तो आप इसको एक से जैसे इजीली आप इंसर्ट कर सकते हो, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। आप इसको विनियर वाले को आप मैनिपुलेट भी नहीं कर पाओगे। वो तो हम्म जो बन के आया लैब से बन के आ गया, लैब प्रोसीजर ज्यादा इन्वॉल्व है। बायोफ्लेक्स में आपका चेयर साइड प्रोसीजर है, रेडीमेड क्राउन्स हैं, आपने सिर्फ अपने टूथ के हिसाब से अडेप्ट किया और सीमेंट कर दिया, हाँ, तो ईज ऑफ वर्किंग बढ़ गई। तो बायोफ्लेक्स सर ये अलाइनर्स की तरह है सर, मटेरियल इनका या नहीं नहीं कैसे सर, है? बायो बायो हाँ, कुछ कुछ अलाइनर्स की तरह कह लो आप। बट दे आर फ्लेक्सिबल। बट काइंड ऑफ देयर फ्लेक्सिबल, मतलब टूथ कलर्ड ओके है लेकिन फ्लेक्सिबल है, और कटिंग भी हो सकती है इनकी। ओके ओके सर ओके। प्रॉब्ली मूविंग टू द आने वाले नेक्स्ट। टाइम में हो सकता है कोई आपके यहाँ अपन वर्कशॉप कोई ऑर्गेनाइज करा दें, जिसमें कि यस सर। आपको सबको ये मिलने, एक्चुअली करना तो वही था लेकिन वो हो नहीं नहीं पा करना रहा था है। किसी किसी कारण से, तो अभी हम सोचा कि ऑनलाइन कर लेते हैं, बाद में सून। आई एम श्योर मैं नहीं नहीं कर करेंगे पाया सर तो आप। वील गेट जरूर नहीं नहीं, समबडी आपका एल्स टू डेफिनेटली आपका सर, ही इट। करवाएंगे सर, इट्स आपका ही देयर इन करवाएंगे सर। आवर हाँ नहीं तो एजेंडा। वो करे बहुत अच्छा है, मतलब बायोफ्लेक्स फॉर क्लिनिशियंस इज यार, मतलब जबरदस्त चीज है। हम्म एक सर सिडेशन पे करवाएंगे सर आपका, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड या जो हाँ, भी है। सिडेशन में देखो दो अपने पास ऑप्शन है। सबसे पहले एक हम्म चीज समझना कि जो हम समझते हैं कि सिडेशन जादू की चीज है, ऐसा कुछ नहीं है ना। हम्म कॉन्शियस सिडेशन जो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड कॉन्शियस सिडेशन जिसे हम्म कहते हैं, जो मशीन्स हैं, जो बच्चा हल्का सा अनकोऑपरेटिव है, जो हम्म घबरा रहा है, वो आइडियल केस है कॉन्शियस सिडेशन में करने का, क्योंकि उसकी घबराहट खत्म हो जाएगी। लेकिन कंफर्टेबल टू पेशेंट सर, हाँ। यस, इट्स कंफर्ट, आपको ऑफ कोर्स कंफर्टेबल टू पेशेंट हुआ तो आपको भी कंफर्टेबल हो गया सर। यस और सर यस दूसरी सर। दूसरी चीज ये है कि अनकोऑपरेटिव बच्चा, आप सोचो कि सेडेशन में हम कर देंगे, वो नहीं होगा। अनकोऑपरेटिव का मतलब मैं कह रहा हूँ जो बच्चा कुर्सी पे ही नहीं बैठ रहा, यो जी बच्चा जो जी। मुंह ही नहीं खोल रहा है, जो कॉन्टिन्यूअसली रो रहा है, ऐसे बच्चे को सेडेशन में करना एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि वो मास्क लगाना है, मास्क के साथ वो बच्चा हिलेगा, मास्क हटाएगा, ऑक्सीजन ब्रीथ करेगा, तो सारा सेडेशन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ऐसे जो हम्म, बच्चे होते हैं उनको हमें जनरल एनेस्थीसिया में करना चाहिए। तो तीन जी। डिवीजन अपने को कर लेनी चाहिए, नॉर्मल, कॉन्शियस सेडेशन और जनरल एनेस्थीसिया। तो नाइट्रस ऑक्साइड का सर बेनिफिट है सर इतना? बिल्कुल सर इन्वेस्ट बेनिफिट है, बिल्कुल बेनिफिट है। इन्वेस्टमेंट पे सर, 100%। इन्वेस्टमेंट हो सर जाएगा। आपके 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मोटी मोटी आज की डेट में, कुछ कंपनी हम्म। 1.5-2 लाख का भी दे रही हैं, मतलब 2 से 3 जी। मान लो। आप हम्म, एवरेज एक पेशेंट को, चूंकि आप अडल्ट डेंटिस्ट्री भी साथ में कर रहे हो, है ना जी जी। सर, मैं बताऊं पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना अडल्ट में मिलेगा। क्योंकि अडल्ट डेंटिस्ट्री में क्या होगा, हम्म पेशेंट एक आपको एक्सप्लेन कर सकता है विजिबली कि मुझे ये हम्म। अच्छा लगा। बच्चे में तो हम अपनी अच्छाई के लिए कर रहे हैं कि बच्चा शांति से करवा ले। सर दोनों में यूज कर सकते हैं, बोथ अलर्ट बिल्कुल एंड बिल्कुल सर, पेशेंट। दोनों में यूज कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ ना, बच्चे में यूज करेंगे तो आप अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो कि बच्चा आराम से करवा ले, लेकिन अडल्ट हम्म, में अडल्ट के बेनिफिट के लिए, क्योंकि वो आपको बोलेगा कि यार वो आपने लगा के किया था ना, तो मुझे कुछ पता नहीं चला था, हम्म। और वाकई कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो लाफिंग गैस है सर, तो अडल्ट्स में क्या बेसिकली लाफिंग रिस्पॉन्स गैस है, आएगा? बेसिकली इट्स लाफिंग नहीं, गैस ओनली। अडल्ट्स में क्या रिस्पॉन्स आएगा? स्माइल करेगा वो कैसे? नहीं सर, सबसे पहले तो जैसे आप देते हो, तो वो एक प्यूपिलेटी डायलेटेशन होनी शुरू हो जाती है, हल्का हल्का से फील करते हैं, जैसे कि जी। अपन थोड़ा सा आप समझो कि 2-3 ग्लास लगा लें अगर ठीक है तो ठीक है, 3 पैक हो गए सर, 3 पैक, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो फीलिंग होती है वो आती है, फिर धीरे अच्छा धीरे अच्छा धीरे धीरे अच्छा वो स्टेज ऑफ अच्छा। एमनीशिया आता है कि आपको फील ही नहीं होता। हम्म अगर इवन एलए लग रहा हम्म। है, आपको लग रहा है आप पहाड़ों में उड़ रहे हो, तो आप उड़ ही रहे हो, आपको नहीं ठीक पता कि एलए ठीक वेले लगा है ठीक। कुछ।
तो अडल्ट्स ठीक में तो ठीक बहुत बढ़िया बेनिफिट आता है, बच्चों में तो आता ही आता है, अडल्ट्स में ठीक है ठीक है। एक्सप्रेसिबल आता है। हम्म इवन तो आज की पैसा डेट में तो सर वसूल है सर, हाँ? डेंटिस्ट जो हैं, डर्मा वाले जो हैं, सब लोग कर रहे हैं। हम्म, पैसा वसूल है सर फिर तो, है? मेरे हिसाब से तो सर वसूल है। नहीं सर, और दोनों को नॉर्मल ऑन एन कंफर्टेबल है एवरेज सर, मैं आप समझिए कि हम लोग कहीं 3 से 5 हजार रुपए चार्ज करते हैं पेशेंट से, सेडेशन की एक्स्ट्रा, ओवर एंड ठीक है अबव द ठीक ट्रीटमेंट। तो जब है, पेशेंट ओके। को समझ आ जाता है कि कितना कंफर्टेबल है, तो उसको देने में कोई दिक्कत ही नहीं आती। और बहुत वो सारे दोनों। तो पीडो क्लिनिक्स ऐसे हैं जहाँ कंपलसरी है, सेडेशन होगा ही होगा। तो दोनों का कंफर्ट है सर, पेशेंट के भी मेनली, डेंटिस्ट का भी है सर। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्ट है सर, एनी डे। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक So next question is by Dr. Sneha Menon. She's यू। from Kochi, Kerala. What are the most common over-treatment and under-treatment errors encountered in pediatric dental practice, sir? सर ओवर ट्रीटमेंट तो होता है कि जब हम ओवर एंथुजियास्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ भी कर दें, ठीक है ना। इन द सेंस कि कुछ भी कर दे, मतलब कि कोई दांत अगर एक्सट्रैक्शन के लायक है तो वो एक्सट्रैक्ट ही करना चाहिए। हमें ओवर एंथुजियास्टिक होकर उसको बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बचाने की कोशिश करते हैं, वी आर ऑलरेडी पुटिंग द पेशेंट्स थ्रू दैट मेनी विजिट्स, एंड इन द एंड ट्रीटमेंट फेल्स। सो देर आर क्लियर इंडिकेशन what a treatment has to be done, and these indications are pretty much visible the time the patient lands to you. So if the tooth is indicated for extraction in the by the virtue of its furcation involvement, radiographic involvement, then it is better to do an extraction rather than to attempt anything else in that. So ये तो हो गया ओवर ट्रीटमेंट या ओवर जीलस ट्रीटमेंट। और अंडर ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स वी डोंट ट्रीट बिकॉज द चाइल्ड विल क्राई, लेट्स सेंड हिम, लेट्स डू अ सिंपल रेस्टोरेशन, टेम्परेरी ऊपर लगा देना। So these are some kinds of under treatment which are routinely done in India. Right, sir. Another question is by a pediatric dentist from Nagpur, Maharashtra, Dr. Arav Kulkarni. In your experience, how should clinicians balance parental expectations with evidence-based treatment decisions for young children? सर पेरेंटल एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना और एविडेंस बेस्ड करना दो अलग अलग हिस्से हैं, दोनों कभी मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पेरेंट की एक्सपेक्टेशन तो ये है कि मेरे बच्चे का बेस्ट ट्रीटमेंट हो, मेरा बच्चा चूं भी ना करे और सब कुछ बेस्ट हो जाए, और आपको भी दिक्कत ना और मुझे पैसे भी ना देने पड़े। तो ये एक्सपेक्टेशन मैनेज करना तो एविडेंस बेस के साथ क्या किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होता। बट देन ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला कि हमारा आधा काम बच्चे के साथ होता है और आधा काम पेरेंट के साथ होता है। तो पेरेंट को मैनेज करना है, पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज नहीं करना। बी वेरी क्लियर विद योर ट्रीटमेंट प्लान, मेक श्योर दैट इट इज योर ट्रीटमेंट प्लान। अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट प्लान तो हो जाता है पेरेंट का कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप कर दो, और करते हैं हम तो उसके बाद वी लैंड अप इन ट्रबल बिकॉज इट इज नेवर सक्सेसफुल। सो वी ऑलवेज शुड हैव अ ट्रीटमेंट प्लान एंड वी शुड मेक श्योर दैट वी इम्प्लीमेंट इट एंड टेल कि देखो यही होगा और हम तो यही करेंगे, आपको नहीं करवाना आप कहीं और करवा लो, सिंपल। लेकिन आप पेरेंट के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं होता है। और लेट मी टेल यू, इन द रियल वर्ल्ड, इन द क्लिनिकल सिनेरियो वर्ल्ड, एविडेंस बेस्ड का डेफिनेटली इट हैज व्हाट यू से, इट हैज अ स्टैंडिंग, लेकिन इट्स नॉट एवरीथिंग। क्योंकि क्लिनिकल सिनेरियो और एकेडमिक सिनेरियो दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल। तो तो दोनों का मिलन का मुश्किल क्या होता है, कई बार किताबों में हमें 100 चीजें लिखनी होती हैं, या ऐसे हम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन क्लिनिकली वो डुएबल नहीं है। Right, sir. Another question is by Dr. Zainab Khan. He's assistant professor in the Department of Periodontics, Bhopal. And the question is, what practical decision-making framework would you recommend to young dentists when faced with challenging pediatric cases? टीम वर्क नंबर वन। सबसे पहले इस चीज को एक्नॉलेज करना कि कोई केस मुश्किल है, हो सकता है मुझे उसमें अपने अलावा और 4 लोगों की मदद लगे। आज की डेट में हम हर आदमी अपने आप को फन्ने खा समझता है, लेकिन ये एक्चुअली सच नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक की कोई एक्सपर्टाइज होती है, हर एक की कोई नीश एरिया होता है, और हमें उसके बियॉन्ड जाते हैं तब जब तो हमेशा टीम एफर्ट लगता है। तो जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स केस मिले,
पहले हम एक्नॉलेज करें कि इसमें कौन कौन आ सकते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उसके बाद हर एक को एक आइसोलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस काम को वो निभाए खुद। तो टीम एफर्ट and division of duties and acknowledgement that this particular task will be done by somebody else, and जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ करूं। राइट सर, वंडरफुल लेक्चर सर। डॉक्टर वरुण सिद्धर सर इज ऑल्सो हेयर। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। हाय निखिल। हाँ जी, क्या हाल? ये ऐसे बढ़िया। देखो, आपने ऑनलाइन करा दिया और हमें वहां आने का मौका नहीं दिया। अरे नहीं नहीं, अभी ऑनलाइन है सर तो ये टीजर था ना, एक्चुअली सर मूवी से पहले टीजर रिलीज होता है। सबसे अच्छी बात है वो जो तुम्हारा अंदाज है टू द पॉइंट बात करने का, क्लिनिकली बात करने का, सबसे अच्छा ये लगता है कि हाँ भी टू द पॉइंट बात करो। इससे ज्यादा मैंने कुछ और बात नहीं करनी है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। मुझे आता ही नहीं, तेरे को बचपन से पता है, कुछ आता तो है नहीं। अच्छा। नहीं नहीं, तुमने थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कह दिया और बहुत अच्छी तरह बताया। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड टीम वर्क का भी बहुत अच्छा बताया। और तुम्हारे इसी वजह से ही तुम्हारे पिछले लेक्चर में भी जब तुम हिसार आए थे तो मेरे से अभी भी लोग पूछते हैं कि हाँ आपके साथ जो डॉक्टर निखिल थे उनका लेक्चर करवाओ। ये काफी टाइम से हमारा पहले भी प्लान था, तो पिछली बार भी रह गया किसी वजह से। अब आगे हम जरूर ट्राई करेंगे तुम्हें हिसार बुलाने का। और अच्छा ये बताओ कॉन्शियस सिडेशन में बेसिकली साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कुछ भी नहीं, पेशेंट? कुछ भी कोई भी नहीं। साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। अगर अगर कॉन्शियस सेडेशन, सिर्फ कॉन्शियस सेडेशन यूज करी जा रही है बिना कॉम्बिनेशन के साथ, तो इट इज एब्सोल्युटली सेफ, एब्सोल्युटली। गड़बड़ क्या होती है कि उसके साथ या तो ओरल मेडिकेशन मिक्स कर दोगे या उसके साथ कोई और मोड ऑफ सेडेशन मिक्स कर दोगे, तो फिर कॉकटेल बन जाती है। कॉकटेल तो हमेशा डेंजरस होती है। नहीं, और मिक्स करने का क्या मतलब है? जैसे जो कॉन्शियस। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को आपने ऑलरेडी ओरल सेडेशन दे दी अच्छा। और उसी पेशेंट को आपने फिर कॉन्शियस सेडेशन दे दी, तो हम्म। वो गड़बड़ होती है। या फिर कॉन्सेंट्रेशन दी और आपको लगा असर नहीं कर रही है, इसको मैं आईवी सेडेशन दे दूं या मिडाजोलाम दे दूं या कोई और ड्रग दे दूं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स में गड़बड़ होती है। आइसोलेटेड कॉन्शियस सेडेशन में कुछ भी नहीं हो सकता। बंदा और सबसे ऊपर अच्छी जाएगा, बात नीचे ये जा है ही नहीं कि हम सकता। अडल्ट में भी यूज कर सकते हैं। है। सबसे अच्छी बात है अडल्ट में भी यूज कर सकते हाँ, हैं। मैं बता रहा हूँ ना, अडल्ट्स में जो फायदा एक्सपीरियंस होता है ना, आप में से किसी का हो तो आप ट्राई करिए, तो नहीं एक्सप्लेनेबल है मुझे, ना। क्या होता है, मुझे एक साइड इफेक्ट लगा अडल्ट में। मान लो अडल्ट को वो बार बार क्रीम आएगा। पीने का मजा आने लग गया तो वो तो हर बार आके वही कह तो देगा। आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप तो 5,000 रुपए लो और उसको बिठाओ, पिलाओ नशा हो आराम। जाएगा उसको, आदत हो जाएगी उसको। हाँ, तो आराम ड्रग्स से पांच ड्रग्स हजार का रुपए लो नशा हो उसको, जाएगा। दोनों का काम अच्छा हो जाएगा। एक वो मास्क उसको दो, एक अपने आप लगाओ। नाइट्रस ऑक्साइड ड्रग एडिक्शन करेंगे सर। दोनों दोनों हाई रहेंगे। रिक्रिएशनल अब्यूज बहुत हाई है सर नाइट्रस ऑक्साइड में। एक डिसएडवांटेज जरूर है, खैर ऑफ हाँ। कोर्स, की रिक्रिएशनल अब्यूज बहुत हाई है। तो बट अदरवाइज इंडिया में तो सेफ है, ऐसा नहीं है। इंडिया में इतना नहीं हुआ अभी फैला इस चीज को। बट क्या होता है कि अडल्ट्स में ना एक एक्सप्लेन कर सकता है आदमी आपको कि मुझे क्या फील हुआ। बच्चों में फायदेमंद है, लेकिन बच्चा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो ये डिफरेंस है। तो निखिल आपका नेक्स्ट लेक्चर कौन से सेडेशन पे फिक्स है सर? आप किसी कंपनी से करवा लीजिए, आप टाई अप यानी कि डेमो भी करवा देना, आप कोई इशू नहीं है। नहीं सर ये नीट है सर, ये मजाक की बात नहीं है सर। मैंने मैं सर पीजी में मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है 15 साल पहले सर। हम्म नाइट्रस ऑक्साइड किसी कंपनी वाले ने लगाई थी, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सर, बहुत ही फील नहीं हुआ कुछ नहीं, भी। अच्छी चीज है सर। आज की डेट यानी में कि तो एक मस्ट है। मैंने बताया ना जैसे आपको कि हमारे हाँ, यहाँ तो अगर मैं जयपुर की बात करूं तो अगर हाँ, 100 डेंटिस्ट के पास होगी तो 100 दूसरे डॉक्टरों के पास भी है, मेडिकल डॉक्टरों के पास। ये डर्मा अच्छा। वाले ये सब रखने आजकल रखते हैं एक्सपीरियंस को। डर्मा टैटू में या लेजर में यूज करते सर होंगे सर लेजर तो। में, टैटू में, हेयर वीविंग में आपको लगा देते हैं, आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है। ठीक ठीक है, ठीक सर है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, किसी ने पूछा है, आई डोंट जी नो द नेम। हाउ मच इज द मेडिको लीगल इश्यूज विद नाइट्रस ऑक्साइड इन किड्स? सर, जब तक आप किसी भी पेशेंट से कंसेंट और एसेंट ले रहे हैं, वो एब्सोल्युटली सेफ होता है।
हम तो अपने ट्रीटमेंट से पहले भी कंसेंट असेंट लेते हैं। आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उससे पहले भी आप कंसेंट फॉर्म भराते हैं। तो सिमिलरली जब सेडेशन करते हैं तो सेडेशन का कंसेंट फॉर्म अलग से बना हुआ है, वो फॉर्म्स भरवाने होते हैं। और इट्स एब्सोल्युटली सेफ, मेडिको लीगल कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने अपना काम जेन्युइनली सच्चाई के साथ ट्रूथफुली किया है, और आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास वो कंसेंट्स हैं। और सारी आजकल तो बहुत बार ये कंसेंट्स जो है हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी करते हैं कि आप पेशेंट हैं, आप समझ रहे हैं क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं। तो ये सब कंसेंट्स हैं बेसिकली। अगर आपने कंसेंट लिया हुआ है तो मेडिको लीगल कोई इशू आता नहीं है। लेकिन नहीं, कंसेंट तो लेना ही पड़ता है हर ट्रीटमेंट से पहले। do we need any certificate of expertization for conscious sedation भी जैसे? देखो सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर होगा तो वो अच्छा होता है। आपको हम्म। कोई प्रैक्टिस करने से मना नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप हम्म। होगा तो आप खुद ही, आपको पता होगा ना कि मैंने क्या सीखा है। तो जब आप प्रॉपर सीख के आओगे, जिसमें आपको फिजियोलॉजी भी बताई जाएगी, आपको रेसिस्टेशन भी बताई जाएगी, आपको समझाया भी जाएगा, आपकी बीएलएस सर्टिफिकेशन भी होगी साथ में, तो फिर ऑटोमेटिकली जब आप सर्टिफाइड हो तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस रहेगा ना। करने को तो मैं खरीद लूं और अपने क्लिनिक पे करना शुरू कर दूं, कौन मना करेगा। नहीं, लेकिन मेडिको लीगल वाइज। मैं वही कह रहा हूँ, कोई मना नहीं करने वाला, मेडिकल लीगल वाइज भी कोई मना नहीं करने वाला। लेकिन सर्टिफिकेशन आपके अपने सुख के लिए है कि मैंने वो चीज सीखी हुई है जो मैं कर रहा हूँ। निखिल, हाँ जी। कॉन्शियस डिशन के लिए सिर्फ एनी डेंटिस्ट ग्रेजुएट कैन डू और पोस्ट ग्रेजुएट और पीरियोडोंटिस्ट ओनली कैन डू? देखो एनीबडी कैन डू। ठीक है। ठीक है ना। फिर अब अगर आप कहो कि एनडीसी की गाइडलाइंस इस पे आई हैं कि नहीं हाँ आई हैं, हाँ, वही है वो ना, इश्यूज वो क्या हाँ। कहते हैं, आइडली जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया थी वो कहती थी सेडेशन इन अ हॉस्पिटल सेटअप, यहाँ पे जहाँ पे एनेस्थेटिस्ट मौजूद हो। फिर उनको हमने एक कॉन्शियस सेडेशन, वो सेडेशन की गाइडलाइंस थी, फिर हमने उन हाँ। लोगों को कॉन्शियस सेडेशन की गाइडलाइंस दी थी जो उन्होंने अप्रूव कर दी। ठीक है। अब वो बनाई हमारी सोसाइटी ने तो हम तो कहेंगे पीडियोडोंटिस्ट करेगा। हम्म। हम्म। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर सीखे हुए हो कॉन्शियस सेडेशन तो आप डेफिनेटली ऑथराइज्ड हो करने के लिए। आप भी तो एक रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हो, आफ्टर ऑल इट इज विद इन योर परव्यू टू डू इट। ठीक है। बाकी देखो ये एक वही मैंने बताया, रूल रेगुलेशन एक अलग चीज है और एक्चुअलिटी में चीज अलग है। अब वो कितने फॉलो हो पाते हैं, कितने कर पाते हैं और क्या फाइनल निकल के आएंगे वो कोई नहीं कह सकता। बट प्रैक्टिकली आप मेरे से पूछो, कर सकते हैं हाँ, अगर आप ट्रेंड हो तो आप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स टोटली सेफ। थैंक यू निखिल, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लेक्चर। Yeah, और आई thank you. लाइक योर टैग लाइन, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ठीक है। मेरे कहीं ना बॉस कहीं ने तो बोला ढूंढना ही था, पड़ेगा। माय बॉस इन द लास्ट ऑफ ईयर माय पीजी सेड, मैं कहा सर गुरु दक्षिणा दे दो। कहते एक ही गुरु दक्षिणा है, व्हेन टू से नो टू द पेशेंट। ये सीखना पूरी बस जिंदगी लग जाती है सीखने में। बस एक्चुअली यही है, ये भी सिमिलर ही है, टू डू नॉट टू डू इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। यस, हर बंदा करना चाहेगा, नो कोई बोलना नहीं चाहेगा, यू आर वही सीख। नहीं, मेरे को ऐसा चलो लगता है नो नो करने से ज्यादा, नो नो करो, मतलब व्हेन आई से नो, आई बेसिकली मीन कॉल अ स्पेशलिस्ट। हाँ, वही वही वही। चलो, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, थैंक यू। Yes, कमेंडेबल sir. लेक्चर। Thank you so much, sir. ओके Um, निखिल भाई, थैंक यू। okay, okay. Then any more doubts? सर एक मिनट सर, बेस्ट कंपनी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन सर। सर इतनी सारी कंपनियां पूछोगे ना तो मेरे को लोगों ने लेक्चर में आउट कर देना, क्या है, तुम कंपनियों का माल बेच रहे हो। नहीं सर, आप जेन्युइन हो सर, अभी कोई कंपनी वाला बंदा नहीं है अपने बीच में नहीं देखो सर, प्रेसिडेंट। मैं बताता हूँ, कॉन्शियस सेडेशन की एक टॉप मोस्ट कंपनी है मैट्रिक्स, जो कि पहले सबसे अच्छी थी, सबसे महंगी मशीनें उनकी हैं और सबसे अच्छी मशीनें उनकी हैं, लेकिन इंडिया में इतनी अच्छी सर्विस नहीं है। दूसरी मशीन एक है कॉन्सेट की, जो इस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलर मशीन है, क्योंकि मशीन भी अच्छी है। और उनकी एक बाल्डस भी है, बाल्डस की भी मशीन अच्छी है, बट वो महंगी है। कॉन्शियस सेडेशन का एडवांटेज ये है कि मशीन अच्छी है और सर्विस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, और बहुत अच्छा आदमी जो काम कर रहा है तो वो जेन्युइनली बढ़िया कर रहा है। और दूसरा फिर नॉक्स करके है एक मशीन, जो कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट द्वारा ही बनाई गई है, और वो कंपैरेटिवली कॉन्शियस सेडेशन से थोड़ा सा सस्ता है। तो ये सारी ऑप्शंस हैं, आप जो भी इनमें से ऑप्शन लेना चाहें आप लें। मेरे क्लिनिक में कौन सी है तो वो कौन सेड है। नोक्स नहीं है सर, वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। नहीं, नॉक्स जो है प्रेडिट डेंटिस्ट ने बनाई है, बट वो अभी बनाई है, मेरी क्लिनिक में तो शुरू से चल अच्छा, रही है, पहले से ठीक है, पहले ठीक से है ही सर। है। बट वही है कि वो कॉस्टिंग वाइज फर्क है। बट हम्म, अगर आपने मेरे से पर्सनल पूछा कुछ सवाल तो मैं कॉन्सेप्ट बोलूंगा। और ठीक जहां है तक सवाल है कि सारी बढ़िया हैं, सभी अच्छी हैं।
ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। Okay, ठीक। sir. Okay. Bye, Yes, sir. everyone. Thank you, sir. Thank Thank you you. so much. Okay. Yes, over to you, Dibita. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your valuable insights and the wonderful session. It was really informative talk, and I hope all our delegates enjoyed the session as well. Thank you so much once again, sir, giving us your valuable time. Looking forward to hosting you again in near future, sir. Thank you so much. Have a good night, everyone. So, with everyone's permission, I will just conclude this session here.